notebook for physics. Okay, fine. So here, this is the position of Earth today. This is the position of Earth after 6 months. All right. So the distance, direct distance between the two position, it is 2 astronomical unit. Fine. Here we have one star S. Okay, ये star S है. तो S क्या है? S is, ये वो star है, star whose distance is required, whose distance is to be measured. Okay, fine. ठीक है जी, इसका हमने डिस्टेंस मेजर करना है. ठीक है. टुडे, सर हाँ जी बच्चे, हाँ जी बोलो. सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. अरे बच्चे, isn't this with, okay, चलो I'll try. So we are using the parallax method to find the distance of a star S. So हमारे पास यहाँ पे एक star S है. Okay. For that two observation point कौन से होंगे? एक observation point आज और एक observation point after 6 months. Today Earth along the circumference of its path around Sun. Today Earth is at E1. So after 6 months, it will be going to E2. Not directly, it will travel its path, but definitely it will be diametrically opposite in. Okay. So today, what we will do, we will measure angle of star S with reference to far away star. There is another star which is very, 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 very far away. Itna dur, this is angle theta 1. Itna dur कि when earth will move along the circumference, position of that star with respect to earth do not change. It is like we are traveling and the S1 is the far away object that is moving along with our bus, car, wherever we are traveling, in whichever we are traveling. Huh. What happens here? We can measure angle theta 1 of star S with respect to S1. Oh, ये S1 क्या है? S1 है far away star whose position with respect to earth do not change, whose position with respect to earth do not change. Okay, now earth is moving. Yes, today we have measured angle at theta 1. Yes sir, we have measured angle theta 1. So earth is moving slowly, it will reach at E2. Okay, the S1, now S1 will seems to be here, क्योंकि बेटा वो दूर वाला ऑब्जेक्ट है, वो हमारे साथ साथ चलेगा. अच्छा जी, S1 यहाँ पे आ गया. ठीक है. नाउ we will measure another angle S2. अच्छा जी, this is what another angle? This is theta 2. Sorry, not S2. This is theta 2. So theta 1 and theta 2 क्या है? Theta 1, theta 2. ये क्या है? This is angular position. किसकी? एंगुलर पोजीशन ऑफ एस. अच्छा जी, कहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू S1. कब? एट E1 एंड E2. एट E1 एंड E2. अच्छा, E1 E2 क्या है? E1 E2 है टू पोजीशन. कौन सी टू पोजीशन? किसकी टू पोजीशन? ऑफ अर्थ. कहाँ पे? ऑन इट्स पाथ अराउंड सन. अच्छा जी, ऑफ इट्स पाथ अराउंड सन. कितने टाइम के बाद? एट 6 month इंटरवल. एट 6 month टाइम इंटरवल. ओके, सो हमने ये डाटा नोट कर लिया कि भाई हमारे पास E1 E2 क्या है? टू पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स पाथ अराउंड सन एट 6 month ऑफ टाइम इंटरवल. S क्या है? स्टार हुज डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड. S1 क्या है? एक ऐसा स्टार, फार अवे स्टार whose position with respect to earth do not change when earth move around its path. Okay, theta 1 theta 2 क्या है? It is the angular position of star S with respect to S1, with respect to S2, no sorry, with respect to S1 at E1 and E2. अच्छा ठीक है. Okay, now we can see we have a triangle like we have not. हाँ जी बोलो. सर इसको फार ऑफ स्टार से लेना जरूरी है? हम इधर से भी तो एंगल मेजर कर सकते हैं जो अर्थ और
अर्थ और सन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को बेस लेके। है ना, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल नहीं ना, सर, यही नहीं कह रहे सर, हो? इसको बेस लेके हाँ, दूसरा दूसरा एंगल सर। दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला, दिस वन? हाँ जी। हाउ विल यू डू दैट बेटा? वी आर नॉट साइमल्टेनियसली एट E1 एंड E2। अगर तो हम एट अ टाइम दोनों जगह पे होते, देन वी वुड हैव डन दैट, राइट? ओके सर। है ना, हम इधर वी आर एट E1 और वी आर एट E2, सो दैट्स इट, दैट्स मेक इट डिफिकल्ट। तो सर हम ओके एंगल कैसे मेजर करते हैं, मतलब बेटा, उसकी। मैंने उस दिन भी बताया था बेटा आपको, एक सिंपल सा ऑपरेटर्स होता है 4-5 हजार का, सेक्सटेंट, अच्छा। जिसको हम हाँ जी फिजिक्स सर। लैब में यूज करते हैं, है सेकंड। ना। लेकिन अगर हम इसको, ये तो प्रैक्टिस के लिए हो गया, लेकिन अगर हम इसको किसी लिटरली एक स्टार का डिस्टेंस जो हमें यूज करना है फॉर फर्दर कैलकुलेशन, इसरो में या नासा में रिक्वायर्ड है, फिर हमारे पास एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक। लैब में हमारे पास सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके ओके। फाइन। नाउ दिस ट्रायंगल E1SE2, अच्छा जी, इन ट्रायंगल E1SE2 के एंगल E1SE2 इज थीटा, बट जो थीटा है वो हो गया θ1 प्लस θ2। थीटा इज θ1 प्लस θ2। सर ये कैसे हो गया थीटा θ1 प्लस θ2? देखिए ऐसे था, ये हमारे पास इधर ये W बन गया, बड़ा वाला W, वो जिसको संजय दत्त ढूंढ रहा था, θ1 θ2। ओके सर, ये दो एंगल है θ1 θ2। सो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये एंगल सर, ये तो θ1 है, ये एंगल, ये तो θ2 है, हाँ, तो टोटल एंगल क्या बन गया? टोटल एंगल θ1 प्लस θ2। सर बहुत या ब्लर आ रहा है, हाँ बेटा, बहुत ब्लर आ रहा है। बच्चे इट मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, राइट, दैट यू नीड टू सी। Okay, now I'll send you the what can I say, this screenshot of this particular article. Don't worry after that. ओके सर। Okay, now sir ने बताया था कि when the arc is too large or when the arc is too small, then it may be a straight line. It is treated as straight line. हाँ जी, तो फॉर्मूला था angle is equal to length of arc over radius। हाँ जी सर, ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने किया था। तो एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड व्हाट अबाउट रेडियस? ओहो, रेडियस ही तो वो डिस्टेंस है जो हमें चाहिए, दैट इज डी। तो डी क्या आ गया? डी आ गया 2/थीटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डी आ गया 2/थीटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ जी, डी 2/थीटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, सो बाय मेजरिंग थीटा, by measuring theta we can find distance of a star। okay, but एक चीज ध्यान में रखना, whenever we measure theta it comes in degrees। थीटा हमेशा डिग्री में आता है, बट यूज करना है रेडियन में। here theta to be used in radian। रेडियन में मेजर नहीं होगा, मेजर डिग्री में होगा। हाँ, उसको कन्वर्ट करके हमें पता 4.85 इंटू 10⁻⁶। सो हम ये डिस्टेंस जो है ये मेजर कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ स्टार यूजिंग पैरेलैक्स। ठीक है सर, ये हमने हो गया, क्लियर हो गया। ओके, आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल सेंड यू लेटर। नाउ हाँ जी, दिया, मुझे दिया नजर आ रहे हैं। दिया बेटा, क्लियर है ये? यस सर। Okay. If any doubt to any one of you can ask, unmute yourself, तो वो ask and दोबारा use। बताना कि वो θ1 और 2 के इक्वल कैसे आया। हाँ बच्चे, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाउ, क्योंकि प्रीवियसली आर्टिकल नोट कर रहा था, अब बता पाऊंगा। देखिए मेरे पास, इफ यू कैन सी बोर्ड, यस यू कैन सी बोर्ड, हियर इट इज S1, ठीक है जी। ओहो, हियर इट इज E1, हाँ जी सर। हियर इट इज S, ठीक है जी। हियर इट इज S E2, हाँ जी सर। देन अगेन हियर इट इज S1। यस सर, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही डायग्राम है।
ये एंगल है थीटा 1। हाँ जी सर, ये तो थीटा 1 है। ये थीटा 2, बिल्कुल सर, इसको हमने थीटा 2 मेजर किया है। When we draw a line here parallel to S1 E1 S1 E2, so this angle alternate angle बन जाते हैं बेटा। ये थीटा 1 हो गया और ये इसके इक्वल थीटा 2 हो गया। सो टोटल जो सम है वो हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। हु वाज दिस? अभिजीत। हु वाज दिस? क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, इट वाज जपनीत। राइट। अच्छा, अब इसमें एक अजीब सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? सर ठीक है, एस आ गया, S1 आ गया, हाँ जी ठीक है, ये दोनों आ गए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एस अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जैसे जैसे अर्थ इधर जाए एस पैरेलल चलता जाए, इधर आ जाए एस। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर S1 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा, जपनीत म्यूट कीजिए, जपनीत गुरलीन स्मिथ। अगर S1 अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल S भी चेंज ना करे। दैट इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड क्या है कि ये जो d डिस्टेंस है, अब हम देख